All right, I hope you all can hear me loud and clear. I hope this is fine at mutual end. So, do we begin? I'll want a few people to respond before I start. All right, so in Ellingham diagram, basically, we plot delta G naught formation of oxide versus temperature. ये थोड़ा सा ना, और ये कैमरा आज स्टिल नहीं है क्योंकि आज मैं मोबाइल भी चार्ज नहीं कर पाया था. तो ऑब्वियसली देर आर मल्टीपल wires attached to the cell phone. One is the headphone, one is the charging point. Please tell me कोई problem होगा तो please tell me delta G naught formation of oxide versus temperature. So we are looking at this equation. Generally a metal forming oxide is about a solid metal reacting with gaseous oxygen forming a solid oxide. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, मेरे से यहाँ पर बीच में पूछ सकता है. फील फ्री टू इंटरप्ट मी. तुम जो भी पूछोगे, जो भी बात करोगे, वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सो दैट डज नॉट डिस्टर्ब द क्लास. पर्टिकुलरली पीपल हु आर न्यू टू द क्लास, कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लो. जो तुम मेरे को पूछते हो, बात करते हो, वो रिकॉर्ड नहीं होता है, तो दैट वुड नॉट डिस्टर्ब द कंटेंट ऑफ द क्लास एनीवेज. अदरवाइज इफ यू डू नॉट आस्क एनीथिंग, आई फील यूर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग. सॉलिड गैस बिकमिंग सॉलिड, ये जो गैस सॉलिड में चला जाता है, एंट्रोपी लॉस होता है. ये मैं लास्ट क्लास में बता रहा था कि गैसियस फॉर्म का सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होता है, फॉलोड बाय लिक्विड फॉर्म, फॉलोड बाय सॉलिड फॉर्म. सो नेचुरली in the formation of the metallic oxide, gaseous oxygen becomes solid oxide. तो एंट्रोपी इसका नेगेटिव होता है. इस प्रोसेस का डेल्टा एस नेगेटिव होगा. एंड गोइंग बाय डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. when you are plotting delta G versus temperature, it will look like y is equal to mx plus c, where your slope m is minus delta s, and because delta s is negative, minus delta s is positive. So you might well get straight line with a positive slope when you plot delta G with temperature. It will look like y is equal to mx plus c. This will be the y coordinate. Slope will be delta s. Actually slope will be minus delta s, and because we have realized that delta s is negative, minus delta s is positive, and that is why the general look of the plot would be a straight line with a positive slope. I think you all are happy with this. I think यहाँ तक कोई problem नहीं है. I think you all are happy with this, and I'll want the new people to respond. ठीक है, देखो यहाँ पर वापस मैं फाइनली बता रहा हूँ. नॉर्मली एक मेटल सॉलिड होता है और उसका ऑक्साइड भी सॉलिड होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ सॉलिड मेटल विद गैसियस ऑक्सीजन बिकम्स सॉलिड ऑक्साइड. इन द प्रोसेस द गैसियस ऑक्सीजन एंट्रोपी इज लॉस्ट. गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन का एंट्रोपी खत्म हो जाता है, गैस सॉलिड में फंस जाता है काइंड ऑफ. तो इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है. when we are plotting delta G versus temperature, I'll tell you why do we plot delta G versus temperature. Because in thermodynamics we know eventually it's the delta G which decides the feasibility or spontaneity of a process. We'll figure out what is the objective of Ellingham diagram, but before everything, this is why when you plot delta G versus T, you find a straight line with a positive slope. Now a couple of more things which I had told you. If suppose you have a plot like this, I'll move to another page. I'll take a fresh page. When you're plotting delta G versus temperature, and will not involve too many equations. बहुत ज़्यादा इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं करेंगे. एनसीईआरटी में ना बहुत इक्वेशन ये सब लेकर के करवाया, नेट डेल्टा जी का बात किया. कॉमन सेंस से समझो इसको. पहला बात, when you plot delta G formation versus temperature, here is a point zero, and we would talk more about these graphs below zero, because for a process to be feasible, delta G should be negative. प्रोसेस का फिजिबिलिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए. अब अगर एक प्लॉट ऐसा है और दूसरा प्लॉट ऐसा है, अगर ये एक प्लॉट है विच इज फॉर ए बिकमिंग AO, और ये एक प्लॉट है फॉर B बिकमिंग BO, and suppose they intersect at a temperature T,
if they intersect at temperature T, let me call it temperature T1. You know, let's go by common sense. Let's go by common sense. This is 0 to begin with. This could be plotted in degrees Celsius because all this will be happening at fairly high temperature, and all of this will be happening in negative delta G range. I'll again talk more about it. पर अगर ये A to AO का प्लॉट है और ये B to BO का प्लॉट है and they intersect at point T1, it means at a temperature below T1, at a temperature below T1, मैं जो भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ वही समझो, टेम्परेचर T1 से जब कम रहता है तो BO का डेल्टा जी फॉर्मेशन ज़्यादा नेगेटिव है. देखो टेम्परेचर T1 है, यू विल वांट टू रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड टू मी. टेम्परेचर T1 से जब कम है, टेम्परेचर T1 से जब कम है तो B टू BO इज मोर नेगेटिव. ये 0 से स्टार्ट करते हैं, ये -100 है, सपोज ये -200 है, ये -400 है. यू वुड हैव सीन द ग्राफ बाय नाउ. ये -800 है, ये -1200 है. सो फर्दर डाउन इट्स मोर नेगेटिव. टेम्परेचर T1 के नीचे BO का ग्राफ नेगेटिव ज़्यादा है. फिर हाँ ना नहीं बोलते हो. आई वॉन्ट मोर पीपल टू रिस्पॉन्ड. टेम्परेचर T1 के नीचे अगर BO का ग्राफ ज़्यादा नेगेटिव है मतलब BO का फॉर्मेशन ज़्यादा फिजिबल है. अगर BO का फॉर्मेशन ज़्यादा फिजिबल है, जितना नेगेटिव है ये सबको पता है, डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस. और ये जितना नेगेटिव होता है, ये जितना नेगेटिव होता है उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है. तो टेम्परेचर T1 के नीचे, टेम्परेचर T1 के नीचे BO का फॉर्मेशन का डेल्टा जी नेगेटिव है. इसका मतलब बिलो T1 डेल्टा जी नॉट जिसका ज़्यादा नेगेटिव है वो बनेगा एट द एक्सपेंस ऑफ AO गेटिंग रिड्यूस्ड. सो बिलो T1 BO will form at the expense of AO. AO से ज़्यादा स्टेबल BO है, AO से ज़्यादा स्टेबल BO है. So this is likely and B can reduce AO, B can reduce AO. इवेंचुअली बोलते हैं जो नीचे रहता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है, जिसका ग्राफ नीचे रहता है वो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है. बिलो T1 आई रिपीट, BO का डेल्टा जी इज मोर नेगेटिव. दिस मीन्स BO इज मोर स्टेबल देन AO और BO कैन बी फॉर्म्ड एट द एक्सपेंस ऑफ AO. BO बनेगा, AO टूटेगा, B कैन रिड्यूस AO. Above T1, above T1, at a temperature above T1, at a temperature above T1, at a temperature above T1, temperature above T1, you can see very clearly. Above T1, AO का formation is more feasible because AO का delta G ज़्यादा negative है. Above T1, AO का delta G ज़्यादा negative है और अगर AO का delta G ज़्यादा negative है, AO बनेगा, BO टूटेगा, AO बनेगा, BO टूटेगा. So above T1, AO का formation at the expense of BO breaking, which means now A can reduce BO. I repeat, the bottom line is, you know, bottom line is जो bottom में रहेगा वो reducing agent रहेगा. फिर हाँ ना नहीं बोलते हो. I promise कल मैं ना व्हाइट बोर्ड पे क्लास लूंगा. हम लोग की कल की जो क्लास होगी मैं व्हाइट बोर्ड पे लूंगा. मैं यहाँ पर इंटरनेट का स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ. एंड ट्रस्ट मी, एवरीथिंग फॉलोइंग इनटू प्लेस. आई वांट टू टेक अ क्लास ऑलमोस्ट एवरी अदर डे. मैं ये जनवरी में ना बहुत इनऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, सब खत्म कर दूंगा. अभी मेरे में बिल्कुल एनर्जी नहीं है. मैं ये 2 प्रॉब्लम करवाऊंगा और 2-3 जो फैक्ट है वो बताऊंगा. एक तो ये इंटरसेक्शन वाला फैक्ट हो गया, जो नीचे रहता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है बिकॉज इसका ऑक्साइड का फॉर्मेशन का डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होता है, स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा है. ये जो मेरे को भी बोला ना स्पॉन्टेनिटी ज़्यादा, ये मेरे को लग रहा है कोई बाहर का स्टूडेंट है. आई एम हैप्पी विथ यू बिकॉज यू आर स्पीकिंग राइट नाउ. अपने बच्चों का आवाज़ तो मैं पहचानता हूँ. नाम बता दो भाई. T1, अगर T1, ओके नाइस. T1 क्रॉस करने से AO का डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव है तो AO बनेगा, ठीक है. जो नीचे रहता है वो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है. ये तो एक इसका ऑब्जेक्टिव हुआ, एलिंगम डायग्राम का एक ऑब्जेक्टिव हुआ. दूसरा ऑब्जेक्टिव हुआ कि काफ़ी सारा, जैसे यहाँ पर सिल्वर होता है, यहाँ पर मरकरी होता है, सिल्वर होता है, मरकरी होता है. डेल्टा जी नेगेटिव होने से प्रोसेस फिजिबल होता है, जीरो होने से इक्विलिब्रियम पर रहता है. और अगर ये पॉजिटिव हो रहा है मतलब डेल्टा जी का फॉर्मेशन नॉन फिजिबल है. अगर फॉर्मेशन नॉन फिजिबल है मतलब डिसोसिएट होगा. वापस बता रहा हूँ, डेल्टा जी नेगेटिव रहने से कोई भी चीज़ फिजिबल होता है. दिस इज डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड. तो नीचे जब रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो ऑक्साइड बनेगा, जीरो पर इक्विलिब्रियम रहेगा और इसके टेम्परेचर के ऊपर ही ऑक्साइड बनेगा नहीं, ऑक्साइड टूटेगा. फॉर्मेशन के लिए नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव होने से फॉर्मेशन नहीं होगा, डिसोसिएशन होगा. तो ये सिल्वर के लिए, ये मरकरी के लिए, ये भी समझ में आता है सिल्वर मरकरी के लिए होगा बिकॉज ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे है, कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑक्साइड कम स्टेबल होता है. तो सिल्वर के लिए ये जो टेम्परेचर आ रहा है या मरकरी के लिए जो टेम्परेचर आ रहा है
If suppose I call it T2 and T3, I think this is very clearly visible. Then T2 will be the dissociation temperature of Ag2O. When you heat Ag2O to T2, this means silver will break at T2, and T3 is when mercury oxide will break. Now T2, T3 are not very high temperatures, and silver oxide and mercury oxide dissociate readily into their metallic form. तो जहां पर ये जीरो को क्रॉस कर रहा है वो उस ऑक्साइड का डिसोसिएशन टेम्परेचर है। मेरे को लग रहा है ये बात भी सबको समझ में आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर स्लोप चेंज करता है तो, अगर स्लोप चेंज करता है तो, इसके ऊपर भी मैंने एक दो क्वेश्चन लिखे हैं। अगर स्लोप चेंज करता है तो, अगर स्लोप चेंज करता है एक मेटल का, मान लो ऐसे मेटल का डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जा रहा है, थोड़ा स्लोप चेंज किया, थोड़ा स्लोप चेंज किया, और फिर जनरली पहला वाला कभी कभी डिटेक्ट नहीं भी कर पाते बिकॉज द चेंज ऑफ स्लोप इज वेरी मार्जिनल, बट दिस इज वेरी क्लियरली विजिबल. If this is T1 and if this is T2, a change in slope, because you know slope is because of minus delta S, and naturally if it's becoming steeper, this means the change in delta S is even more. The change in delta S is even more. Now ये ना मैंने ऑनलाइन भी देखा, किताब में भी देखा, मतलब टीचर लोग इतना इसके अंदर में इतना ज़्यादा मैथमेटिक्स भर देते हैं ना भाई, कॉमन सेंस है कि पहले सिर्फ गैस का एंट्रोपी कम हो रहा था, पहले सिर्फ गैस का एंट्रोपी कम हो रहा था. अगर मान लो ये सॉलिड की जगह लिक्विड होता है, अगर ये सॉलिड की जगह लिक्विड होता है, अगर ये मेटल सॉलिड की जगह लिक्विड होता है, अगर ये मेटल सॉलिड की जगह लिक्विड होता है, तो यहाँ पर जो एंट्रोपी लॉस हो रहा है, यहाँ पर जो एंट्रोपी लॉस हो रहा है वो गैस का भी हो रहा है और लिक्विड का भी हो रहा है. फिर हाँ ना नहीं बोलते हो. अगर ये मेटल सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला गया, यहाँ पर तो डेल्टा एस डेफिनेटली नेगेटिव है, यहाँ पर तो डेल्टा एस डेफिनेटली नेगेटिव है, पर जब ये सॉलिड लिक्विड बनता है, जब ये सॉलिड लिक्विड बनता है, ये वाला इक्वेशन में ये गैस का भी एंट्रोपी गया, सॉलिड बन गया, और ये लिक्विड का भी एंट्रोपी गया, तो यहाँ पर डेल्टा एस नेगेटिव था, ये वाला इक्वेशन के लिए डेल्टा एस इज मोर नेगेटिव, एंड इफ इट इज मोर नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ दिस इज मोर पॉजिटिव. यस और नो? Now suppose it becomes a gas, suppose the metal vaporizes. If the metal vaporizes, then naturally here the loss in entropy would be maximum, because सिर्फ एक गैस जा रहा था, यहाँ पर दो गैस सॉलिड बन रहे हैं, तो I can write delta S is even more negative, delta S is even more negative, delta S is even more negative. फिर हाँ ना नहीं बोलते हो. अरे कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, वरना आई वांट यू ऑल टू रिस्पॉन्ड. सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पर एंट्रोपी नेगेटिव होता है बिकॉज गैस सॉलिड बन जाता है, गैस सॉलिड में फंस जाता है. यहाँ पर एंट्रोपी और नेगेटिव होता है बिकॉज अगर मेटल लिक्विड बन गया तो ये और नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज लिक्विड और गैस दोनों का एंट्रोपी खत्म हो गया. ये अगर ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो ज़्यादा नेगेटिव का स्लोप और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा. और वेपर में तो नेचुरली द लॉस ऑफ एंट्रोपी विल बी मैक्सिमम, एंड दिस वुड चेंज इट्स स्लोप when the metal suppose changes its state from solid to liquid and gas. So T1 might well be the melting point and T2 might well be the boiling point of that metal. I hope this is understood by everyone. ठीक है बच्चे लोग, एक लास्ट बात और बता देते हैं, एक लास्ट बात और बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं. एक लास्ट बात और बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं. दिस इज अबाउट द 3 इक्वेशंस व्हिच यू राइट फॉर कार्बन. Carbon getting oxidized, C plus O2 becoming CO2 is one equation. Naturally, CO plus half O2 becoming CO2 is another equation. And C plus half O2 becoming CO is another equation. Let me call it equation 1, equation 2 and equation 3. Now, this is understood by everyone. This is solid, gas, गैस. एक मोल गैस से एक मोल गैस आ रहा है, एक मोल गैस से एक मोल गैस आ रहा है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एंट्रोपी चेंजेस मिनिमम, यहाँ पर एंट्रोपी चेंजेस मिनिमम, यहाँ पर एक मोल गैस प्लस हाफ मोल गैस से एक मोल गैस आ रहा है. 1.5 मोल गैस इज बिकमिंग 1 मोल गैस. सो यहाँ पर नेगेटिव होगा, डेल्टा एस चेंज इज नेगेटिव. एंड हेयर दिस सॉलिड, दिस गैसियस एंड दिस गैसियस, यहाँ पर फॉर अ चेंज हाफ मोल गैस से एक मोल गैस बन रहा है,
सो यहाँ पे ना डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव, ये थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव होगा बिकॉज हाफ मोल गैस से 1 मोल गैस बन रहा है, और डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब माइनस डेल्टा एस नेगेटिव, और तीसरा वाला का जो ग्राफ होगा इट विल बी अ नेगेटिव स्लोप। नाउ लेट्स ड्रॉ द 3 प्लॉट्स, लेट्स ड्रॉ द 3 प्लॉट्स and let's understand it. Which one? ये सृष्टि है क्या? सृष्टि बोल रही हो? चलो ठीक है। आई एम हैप्पी और आस्किंग समथिंग। आई केम टू नो यू वेंट टू निको पार्क। क्लास भी सारा कर रही है तो तबीयत ठीक है ना? और क्या निको पार्क घूमने के बाद में तबीयत ऐसे ही सबका ठीक हो जाता है। मेरे को भी ना एक्चुअली अच्छा लगता है निको पार्क, मेरे को ख़राब नहीं लगता है। दैट डे आई वाज अ लिटिल ऑक्यूपाइड, मोहित ऑल्सो गॉट वेरी अपसेट। हाँ हाँ, मैं ना अभी कुछ दिन से थोड़ा सा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। खैर नेवरदलेस, कितना ही परेशान हूँ यार ना, ये मेरे को बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में। ये काम बहुत अच्छा है, ये काम बहुत ज़रूरी है। तो ये सब सेशन ख़त्म होने के बाद में एक बार मैं वापस जरूर तुम लोगों को घुमाने के लिए जाऊँगा। अभी 1 मोल गैस से 1 मोल गैस, 1 मोल गैस से 1 मोल गैस, इक्वेशन 1 में बेसिकली डेल्टा एस चेंजेस ऑलमोस्ट मिनिमम, ऑलमोस्ट जीरो बोलते हैं, डेल्टा एस चेंजेस जीरो। अब जीरो तो नहीं होता है, फिर भी 1 मोल गैस से 1 मोल गैस आ रहा है, तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा डेल्टा जी नॉट का, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्लोप तो है ही नहीं, डेल्टा एस तो जीरो है। यहाँ पर 1.5 मोल से 1 मोल बन रहा है। देखो, अरे ये तो सबको पता है ना कि कार्बन मोनोक्साइड गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन सॉलिड है। फिर हाना नहीं बोलते हो। 1.5 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो यहाँ पर तो 1.5 मोल गैस से 1 मोल गैस बन रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली डेल्टा एस नेगेटिव है। डेल्टा एस नेगेटिव है मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है जैसे हम लोग मैक्सिमम केस में देखे थे, तो इक्वेशन 2 का ग्राफ ऐसा आएगा। और इक्वेशन थ्री में हाफ मोल से 1 मोल गैस बन रहा है। गैस का नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करता है, गैस का नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करता है, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा और नेगेटिव डेल्टा एस नेगेटिव होगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा। और ये इक्वेशन 1 के लिए, ये इक्वेशन 2 के लिए, ये इक्वेशन 3 के लिए, ये वैल्यू जनरली किताब में एग्जाम में दिया रहता है, फिर भी याद रखोगे तो बेटर है। इट्स ऑलमोस्ट 710 डिग्री सेल्सियस, एंड नेचुरली बिफोर 710 डिग्री सेल्सियस, below 710 degree Celsius, equation 2 will have the maximum negative delta G value. This equation CO becoming CO2, this equation CO becoming CO2 would be the principal oxidation happening at temperature below 700. And if this is the principal oxidation happening, because this equation has the minimum, or you can say maximum negative delta G, carbon monoxide is taken as the principal reducing agent at lower temperatures. It's a very common question, ये सारा एग्जाम में पूछ चुका है कि ब्लास्ट फर्नेस में आयरन का प्रिंसिपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोक्साइड है, बिकॉज कार्बन मोनोक्साइड बिकमिंग कार्बन डाइऑक्साइड will have, you know, the most feasible delta G value. You know, this equation has the most negative delta G value. You know, I'll want to wait for a minute. मैं ये सबका पिक्चर भेज देता हूँ। जो लोग बोकारो वाले हो ना, ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये हवा में पढ़ा के छोड़ दूंगा, मैं इसका पिक्चर भेज दूंगा। जो क्लास अभी मैं ले रहा हूँ ये रिकॉर्ड होती है, यूट्यूब पे अपलोड करके आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू। You need to, what you need to do is listen very carefully. If you have a doubt, you need to ask me and please respond. फिर हाना कोई नहीं बोलता है। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। You all are happy with this? ठीक है बच्चे लोग, अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। मैं ऐसे भी कल व्हाइट बोर्ड वाला क्लास लेने के पहले ना एक थोड़ा सा डमी रन करूंगा। मैं 2-4 लोग के साथ में रन करूंगा पहले एक डमी रन। मैं कुछ लोग को लिंक भेज के पहले मैं एक बार मॉर्निंग में चेक कर लूंगा, उसके बाद मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा बाकी के प्रोसेसेस। In case you have attempted question 1, I think it is visible to everyone at what approximate temperature zinc and carbon have equal affinity for oxygen. So they'll have equal affinity for oxygen at a temperature. Yes, please. Yes, please.
अच्छा, कुछ नहीं बोलने के लिए भी मेरे को रोक देती है, कोई बात नहीं। सुनो, क्वेश्चन तो पढ़े हो तुम लोग। एट व्हाट अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर जिंक एंड कार्बन हैव इक्वल एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है कि इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दिस। 1000 होगा। हाँ, कहाँ है बाकी लोग? का है उत्सव, उत्सव वैभव सुव्रत, उत्सव वैभव सुव्रत। अनुष्को কোথায় আজকে? অনুষ্কো কিছু বলছে না? Tomogno, you are also not very regular in the class. Sinjini, can you hear me? So I hope you people are not angry upon me. You know, I keep on promising a number of classes. Trust me, I'm going to deliver it in this month. We will complete everything, don't worry. देखो बच्चे लोग, जिंक और कार्बन का इक्वल एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन होता है। जिंक और कार्बन का इक्वल एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन होता है व्हेन naturally the delta G values are equal, and the delta G values are equal at a temperature around 1000. This is around 1000. मैंने इसको ये डॉट करके एक्स्ट्रापोलेट किया भी था। दिस इज 1000 डिग्री। क्वेश्चन 1A, आई होप एवरीबडी कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर, particularly people who are new to the batch. Please tell me if there is a doubt. ऑल राइट, तो जिंक ऑक्साइड को जिंक बनाने के लिए, मतलब फॉर कार्बन टू एक्ट एज a reducing agent and become carbon monoxide, what is the condition required? Temperature should be less than 1000 or more than. It should be more. It should be more. It should be more. It should be more because only at temperature more than 1000, at temperature more than 1000, कार्बन वाला ग्राफ इज गोइंग बिलो जिंक वाला ग्राफ। देखो जिंक वाला ग्राफ ना, यहाँ पर ये 10 मिनट में मीटिंग एक्सपायर कर जाएगी। 10 मिनट में मीटिंग एक्सपायर कर जाएगी। जो लोग नए हो, ये मीटिंग एक्सपायर करने के बाद डरने का नहीं है, इसी लिंक से वापस ज्वाइन होना है। जो लिंक मैंने भेजा है इसी से वापस रिज्वाइन करना है। हाँ चलो, विच इज़ नाइस टू नो। मैंने ना अभी तक जूम को 1 रुपया भी दिया नहीं है। मेरा एक ये अनपेड अनसब्सक्राइब्ड जूम का कनेक्शन है। आई एम प्राउड टू से दैट। उसमें मेरे को कोई शर्म नहीं है। मैंने जूम का कोई कनेक्शन नहीं लिया। बीच में ब्रेक जो होता है ना, वो मेरे लिए एक रिलीफ ही रहता है। थोड़ा पानी वानी सब लोग पी लेता है। सुनो बच्चे लोग, तो ये मीटिंग खत्म हो जाने के बाद में यू विल वांट टू ज्वाइन विद द सेम मीटिंग आईडी। ये कौन बोल रहा है यार लेस देन 1000? कौन? प्रशांत बोल रहा है क्या? बात समझ में नहीं आता है। 1000 के नीचे तो जिंक, 1000 के नीचे तो जिंक नीचे है। 1000 जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका ऑक्साइड बनना चाहिए। उसका ऑक्साइड का वैल्यू डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, वो नीचे होना चाहिए। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। आगे बढ़े। मेरे को लगता है ये भी सब लोग पढ़ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? रिडक्शन ऑफ कैल्साइंड और रोस्टेड आयरन ओर, मतलब ऑक्साइड, आयरन और का ऑक्साइड टू पिग आयरन, लोअर टेम्परेचर पे इट्स डन बाय कार्बन मोनोक्साइड एंड हायर टेम्परेचर पे इट्स डन बाय कार्बन। ये अभी तक सबको समझ में आ गया होगा। लोअर टेम्परेचर पे इट्स डन बाय कार्बन मोनोक्साइड एंड हायर टेम्परेचर पे इट्स डन बाय कार्बन बिकॉज at lower temperature carbon monoxide becoming carbon dioxide is the one having maximum negative value of delta G naught। और उसके बाद इस टेम्परेचर के आगे इसका वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव रहता है। देखो अगर मान लो ये टेम्परेचर लेते हैं, 400 के आसपास लेते हैं, तो कौन सा ग्राफ सबसे पहले आएगा? सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसका आएगा? ये वाला ग्राफ आएगा, कार्बन मोनोक्साइड का। उसके बाद आएगा कार्बन वाला। ये सुनो, कार्बन बिकमिंग कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड बाद में आएगा। तो द टेम्परेचर विच इज लोअर देन दिस पॉइंट, कार्बन मोनोक्साइड बिकमिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज द मोस्ट फिजिबल रिएक्शन एंड कार्बन मोनोक्साइड इज द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन काफी बार पूछ चुका है। आयरन का प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन मोनोक्साइड है। पर लोअर डाउन जोन ऑफ फ्यूजन के आसपास, मैं ब्लास्ट फर्नेस का अलग अलग जोन बताऊंगा कल की क्लास में। जोन ऑफ फ्यूजन के आसपास में भी जो रिड्यूस होता है आयरन, दैट इज बिकॉज ऑफ कार्बन बिकमिंग कार्बन मोनोक्साइड, बिकॉज एट अ हायर टेम्परेचर दिस गोज फर्दर डाउन। फिर हाँ नहीं बोलते हो। तो लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोक्साइड, लो टेम्परेचर पर कार्बन मोनोक्साइड, हाई टेम्परेचर पर कार्बन। रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड यूजिंग कार्बन नीड्स हायर टेम्परेचर देन दैट फॉर कॉपर। नेचुरली जिंक और कॉपर में, कॉपर ना ऊपर होता है, कॉपर काफी ऊपर होता है। देखो कॉपर काफी ऊपर होता है यहाँ पर।
कॉपर काफी ऊपर होता है, तो किसी भी टेम्परेचर पर ना, किसी भी टेम्परेचर पर कार्बन का जो ग्राफ है, किसी भी टेम्परेचर पर कार्बन का जो ग्राफ है वो कॉपर के नीचे है। तो किसी भी टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर या इस टेम्परेचर पर या इस टेम्परेचर पर, कार्बन विल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड एंड कोक विल रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड, कोक विल रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड, बिकॉज एट एनी टेम्परेचर कॉपर का ग्राफ ऊपर है। कार्बन का ऑक्साइड बनना इज मोर फिजिबल, कार्बन कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन कैन रिड्यूस कॉपर ऑक्साइड। आई थिंक बाकी लोग को प्रॉब्लम नहीं हो रही है देखने में, मैं इसका सबका फोटो भेज देता हूँ क्लास के बाद में। अभी सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो एंड यू विल वांट टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो एंड यू ऑल विल वांट टू रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। आई होप यू ऑल कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर। फिर हाँ नहीं बोलते हो। कॉपर का किसी भी टेम्परेचर पर, कॉपर का किसी भी टेम्परेचर पर ना रिडक्शन हो सकता है, बिकॉज कार्बन का ग्राफ हमेशा कॉपर से नीचे रहता है। पर जिंक को तभी रिड्यूस करेगा, जिंक को तभी रिड्यूस करेगा कार्बन, जब ये ग्राफ यहाँ पे कट करेगा, सिर्फ यहाँ से कार्बन रिड्यूस करना चालू कर देगा, इसके ऊपर का टेम्परेचर पर, इसके आगे का टेम्परेचर पर, इसके आगे का टेम्परेचर पर। तो जिंक के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, इसके आगे का टेम्परेचर चाहिए, और फिर हाँ नहीं बोलते हो। कॉपर किसी भी टेम्परेचर पर हो जाएगा। अभी अभी सुनाई दे रहा है क्लियरली? अभी सुनाई दे रहा है क्लियरली? वो बीच में ना, मैं ऑब्वियसली मैं मोबाइल डेटा यूज़ कर रहा हूँ, तो बीच में मेरा मैसेजेस आ जा रहा है। थैंकफुली अभी तक कोई फ़ोन नहीं आया है, जब फ़ोन आता तो ऑब्वियसली आवाज़ म्यूट हो जाएगा। आई थिंक अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। चलो चलो, तो कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो, वरना कॉपर को हम लोग कम टेम्परेचर पर भी रिड्यूस कर सकते हैं, जिंक के लिए कम से कम टेम्परेचर इसके आगे होना चाहिए। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज फाइन। जिंक ऑक्साइड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर देन कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान है देन ओर ऑफ जिंक एंड आयरन, बिकॉज जिंक और आयरन का ओर नीचे है, कॉपर का ऊपर है। ऑल ऑफ दीज लुक्स गुड, ऑल ऑफ दीज लुक्स गुड। Yes, please. It seems Suvrat has a question. It seems Suvrat has a question. नहीं नहीं, एलिंगम डायग्राम दिया रहेगा, एलिंगम डायग्राम दिया रहेगा, और ये सिल्वर और मरकरी का बिल्कुल ऊपर में रहता है, उसके बाद कॉपर का रहता है। ये हम लोग को ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी पता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में these are the ones which occupy the lower positions, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold. So naturally these are the least electropositive oxides and their oxides are least stable. So you know this is like knowing it either way. आयरन और जिंक में यू नो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक आयरन के ऊपर है, तो जिंक ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा, जिंक ऑक्साइड का डेल्टा जी ज़्यादा नेगेटिव होगा। तुम ना दो तीन तरह से इसको रिलेट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एलिंगम डायग्राम के बारे में तुमको कोई आइडिया नहीं होगा जब तक तुम एलिंगम डायग्राम देखोगे नहीं। हाँ, एलिंगम डायग्राम दिया रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो एलिंगम डायग्राम दिया रहेगा, पर एलिंगम डायग्राम नहीं भी दिया रहे तो एलिंगम डायग्राम में जो ऑब्जर्वेंस है ना, so many times the position of the elements will be with respect to their position in the electrochemical series as well. ठीक है, यहाँ पर दिया रहेगा तुमको, जब तुम लिखते हो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तुम लिखते हो मैग्नीशियम अबव एल्यूमिनियम, तुमको पता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में मैग्नीशियम का ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर हाँ नहीं बोलते हो। इसीलिए मैग्नीशियम का ग्राफ एल्यूमिनियम के नीचे होता है। तो मेरे को ना ये सरप्राइजिंग नहीं लगता है, मेरे को ये सरप्राइजिंग नहीं लगता है, बट द वैल्यू एडिशन इज देयर इज अ पॉइंट ए आफ्टर विच एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम। So this is the objective of Ellingham diagram. You know, at different temperature ranges, which is a better reducing agent can be determined, and this can be determined using a parameter which is a more correct parameter. Oxidation reduction potential was for them in solution. अभी solution का बात तो हो नहीं रहा है, blast furnace में हो रहा है, solid form में reduction होता है। तो you know this is a more correct analysis, and it also tells you that below A magnesium will be the reducing agent which was expected. But above A, aluminum could be the reducing agent because above A, aluminum oxide formation is more feasible than magnesium oxide formation. I hope सबको मेरी बात समझ में आ रही है। तो A के नीचे मैग्नीशियम Al2O3 को रिड्यूस करेगा, A के ऊपर, A के आगे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। एक ही बात तो इतना देर से बता रहे यार, तुम लोग तो इंटेलिजेंट हो।
ए के नीचे मैग्नीशियम रिड्यूस करेगा Al2O3 के, और हाई टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम रिड्यूस करेगा। काफ़ी बार तुमको पता है मेरा क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि तुमको सारा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। काफ़ी सारा ना इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट ना पॉइंट वाइज पढ़ना नहीं चाहता है, पर एग्जाम में ऑप्शन आता तो पढ़ लेता है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि हायर टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस एमजीओ, बट इट्स नॉट अ वेरी वाइज थिंग टू डू, बिकॉज एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगता है, उल्टा एल्यूमिनियम निकालना भी एक चैलेंज है। तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट भी समझ लो। ए इज राइट, बी इज राइट, सडन चेंज इन स्लोप इज ड्यू टू चेंज ऑफ स्टेट, आई स्पोकन अबाउट इट। आई थिंक ये सबको मेरी बात समझ में आ गई है। वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द मीटिंग, हाँ। बिफोर ये जूम वाला हम लोग को बेइज्जत करके बंद कर दे, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, ये ऑप्शन सी और समझ लेते हैं कि सी भी सही है, डी राइट आंसर है, फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। हम लोग क्या करते हैं ना, अभी हम लोग विल वांट टू एंड दिस मीटिंग एट आवर डिस्क्रिप्शन, हाँ। सो लेट्स एंड दिस मीटिंग विद सम सेल्फ एस्टीम एंड ज्वाइन विद द सेम लिंक। ऑलराइट, यू विल वांट टू ज्वाइन विद द सेम लिंक। ठीक है बच्चे लोग, आई होप नाउ यू ऑल कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर। और ये एक दूसरा तरह का डायग्राम है, मैंने ये सारा पॉइंट्स बता ही दिया है। मैंने बेसिकली ये सारा पॉइंट्स तुमको पहले ही ब्रीफ कर दिया था। सिल्वर और मरकरी का ऊपर में यहाँ पर जीरो टच कर जाना सरप्राइजिंग नहीं है, बिकॉज दे ऑक्यूपाई लो पोजिशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, the oxides are very unstable, and these three graphs, they were like equation 1, 2 and 3, which intersect at around 710 degrees Celsius. So I think we have taken care of question 1. Do you want me to repeat this for you, or everybody understood it in the very first place? Do you want me to repeat this for you, or this is understood by everyone? बोलो बच्चों, बोलो बोलो बोलो। काइंड ऑफ पहला बात तो ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली 710 पे ही मीट करता है। ये थोड़ा सा ना तुम लोग का काम को आसान करने के लिए ये तीनों को कॉन्करेंट कर देता है। पहला बात तो बिल्कुल ये कॉन्करेंट होता नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा कन्वीनियंस के लिए 710 के आसपास कर देता है। एंड नेचुरली डेल्टा जी का वैल्यूज में जब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा ना, देन ऑल दी प्रोसेसेस विल बी हैपनिंग। ऐसा थोड़ी है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है तो उस समय कार्बन रिड्यूस करता ही नहीं है, पर कार्बन मोनोऑक्साइड बिकमिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मोर फिजिबल चेंज एट टेम्परेचर बिलो 710। जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है तो उस समय ऐसा थोड़ी है कि कार्बन का रिडक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि आयरन का ग्राफ तो कार्बन वाला से भी ऊपर ही रहता है वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बिकमिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रिंसिपल प्रोसेस हैपनिंग। यू नो, आई विल ऑल्सो टेल यू दैट सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, क्रोमियम और एल्यूमिनियम। यू नो, एल्यूमिनियम कैन रिड्यूस क्रोमियम, but magnesium can do it more effectively. The magnitude of delta G would tell you that this is a more spontaneous process. अब अगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों रहेगा तो मैग्नीशियम भी रिड्यूस करेगा, एल्यूमिनियम भी रिड्यूस करेगा। ऐसा थोड़ी कि एक ही रिड्यूस करेगा, पर मैग्नीशियम विल प्ले अ बिगर रोल। Similarly, at a temperature below 710, carbon monoxide is the principal reducing agent, but it's not like carbon does not work at all. And naturally, you need a blast furnace covering a bigger temperature range, because to get carbon monoxide, you also want this part of the temperature range to be explored, because carbon monoxide will be formed from carbon at a higher temperature. तो ना नेचुरली बिकॉज ब्लास्ट फर्नेस में नीचे जाके टेम्परेचर 1200-1500 तक होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर आकर के जोन ऑफ रिडक्शन में ये वाला जो रीजन होता है वहां पर काम करने लग जाता है। देयर इज नथिंग लाइक एग्जैक्ट 710 पर क्या होता है। 710 से नीचे ये ग्राफ सबसे नेगेटिव है, सो दिस इज द प्रिंसिपल रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ठीक है। 1000 डिग्री पे कौन कौन सा अनस्टेबल है? 1000 डिग्री पे वो अनस्टेबल है जिसका वैल्यू नेगेटिव नहीं है, Hg और Ag। 649 और 1100 डिग्री सेल्सियस मैंने बता दिया, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अगर किसी में सिर्फ एक ही कर्व दिखे, जैसे जिंक में एक ही कर्व दिखता है,
तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ही होगा. Aluminium can reduce Cr2O3, but Cr2O3 cannot reduce aluminium. Aluminium can reduce Cr2O3 because aluminium नीचे है. I'm happy Srishti is willing to reply. I hope it's Srishti replying. चलो चलो, which is nice, which is nice, which is nice. बाकी लोग को समझ में तो आ रहा है? हाँ ना बोलो मेरे भाई. चिंता मत करो, चिंता मत करो, कल तक ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाएगा. आज 5 विकेट का ना, चिंता मत करो. ऑल्दो इट्स अ डिप्लीटेड साइड, स्टिल विल विन. और यस सर, देखो इसमें सब यस सर बोलते हैं, तो क्रिकेट का बात एकदम नहीं होना चाहिए मेरे क्लास में. यहाँ पे सब लोग बोलेगा एल्यूमिनियम रिड्यूसेस Cr2O3, Cr2O3 डज नॉट रिड्यूस एल्यूमिनियम. ये सबको समझ में आता है. General relative tendency of reducing agent, magnesium, aluminum, silicon, chromium, zinc, iron, copper, because you have magnesium here, aluminium here. अब तुमको बोलेगा कि सिलिकन को कहाँ पे प्लेस करोगे, तो सिलिकन का जो ग्राफ होगा ना वो एल्यूमिनियम क्रोमियम के बीच में होगा. ऐसा कुछ सिलिकन होना चाहिए था. क्रोमियम है उसके ऊपर, हाँ, जिंक क्रोमियम के ऊपर होना चाहिए था. आयरन और ऊपर होना चाहिए था. और नेचुरली कॉपर तो काफ़ी ऊपर होता है. कॉपर तो सबसे ऊपर होता है. यहाँ पर कॉपर का ग्राफ ऐसा होता है. तो तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो यार, तुम लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो. आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. ऑप्टिमिज्म इज अ बैड वर्ड टू यूज. आई एम वेरी प्राउड ऑफ मोस्ट ऑफ यू. आई एम रादर प्राउड अपॉन ऑल ऑफ यू. मन लगा के पढ़ाई करो. एक्सक्यूज मी फॉर टुडे. टुमारो विल हैव अनदर सेशन. विल वांट टू कंप्लीट मेटलर्जिकल जनरल प्रॉपर्टीज एंड टाइम परमिटिंग आयरन का ब्लास्ट फर्नेस भी देख लेंगे. एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट?